Hello everyone, I am Parveen Singh. Today we start new topic, phenomenology methods. Friends, this method is used to analysis fixed arch, fixed beam, and also a closed frames easily analysis. If we see this method is a very interesting method, uh, you can see that in case of fixed beam and also a fixed arch, there are indeterminacy is more as compared to the 2 hinge arch and 3 hinge arch. Okay, so where those structure have a more indeterminacy, that will be not more than 3, right? That will be not more than 3. So this method is used, and that type of structure easily analysis by this method, right? So let's start with the column analogy methods. So column analogy method, students, discovered by the Professor Hardy Cross in 1932. This method is stable for analysis of indeterminate beam and frames with indeterminacy not exceeding 3. It is extensively used in the analysis of beam, frames, and arches with fixed ends, and ideally suited for computing the stiffness and carryover factors in beams with varying cross sections. देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ पे फिक्स आर्च की बात करें तो उसकी जो इंडिटरमिनेंसी है वो 3 होती है। तो वो आपको फिक्स आर्च को हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कॉलम एनालॉजी मेथड से, और इस मेथड से हम इजीली कैरी ओवर फैक्टर एंड जो स्टिफनेस है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वेरियस क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, बीम है, तो उसके लिए हम इजीली थिकनेस और कैरी ओवर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। The analysis of closed frames has also become easier by this method. So how you analysis the structures? So by using this example, we see that I consider a fixed beam with the same loading conditions. You can see here in a figure. Here, first we draw the simply spotted moment diagram, bending moment diagram for this beam, and also draw a fixed end moment diagram for this beam. After we draw the diagrams, these diagrams, we find the final moment, so that is equal to ms minus mi. So if we find the moment at any point, so we find by this m equal to ms minus mi, right? So students, here is a point how we find the ms and mi. So to using the moment area theorems, tangent slope between a and b is 0, is that sum of m by ei diagram between a and b is 0, right? So area of ms minus mi by ei diagram, that is equal to 0. Therefore area of ms by ei diagram equal to mi by ei diagram. That is consider equation 2. So this equation used to analysis the beam structures, and equation number 1 also be used. Now we using the deflection of beam from tangent at A is 0, is that
moment M by EI diagram between A and B about B equal to 0. Students, if we consider the deflection at point B, so here moment is 0. So taking moment about the point B, that is equal to 0 of M by EI diagram. Hence, moment of M by Mi by EI diagram about B, that is equal to moment of Mi EI diagram about B. Both are equals. So moment about of Ms by EI diagram equal to moment of Mi by EI diagram about B. Both are equal. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? दैट सेंटर्ड आर कोइंसाइड. बोथ डायग्राम का क्या है आपका सेंटर कोइंसाइड करेगा. So that is also useful to analysis the structure. That is considered the equation. That is considered next equation. Equation number third. Now we see considering the short column of 1 by EI width subject to loading represented by the MS by EI diagram. You can see here. Here we consider the column of unit weight 1 by EI, and here load applied in the MS by EI diagram form, and the pressure that is applied upward, that is in the MI diagram form. If we see the isometric view of the column with the load and pressure developed, you can see here. So it may be observed that for equilibrium, total load on the column that is equal to total upward pressures. If we see second observation, the centroid of the downward load must coincide with the centroid of upward pressure. So here the conditions give 4 and 50 equations. This condition for equation number 4, that is mentioned equation number 4, and that condition that is mentioned equation number 5. So the condition given 4 and 5 are analog to conditions specified for fixed beam. By equation 2 and 3, and hence analogs can be used advantageously for the analysis of fixed beam. Right. We can analyze the column subject to MS by EI loading and find the pressure developed which is represented in MI diagrams, then form equations 1, that is final moment M, that is equal to MS minus MI. Here we see the sign convention. Three moments MS is positive if it causes tension at bottom side. Positive MS is applied as downward load. मतलब पॉजिटिव एमएस से हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? द लोड अप्लाइड डाउनवर्ड साइड. इफ वी अपवर्ड प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ द कॉलम इज पॉजिटिव if it causes tension at top. Moment at any point is m equal to ms minus mi. Hence, at any point, positive moment cause tension at the bottom. तो ये आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जो एमएस डायग्राम के कारण जो डाउनवर्ड लोड अप्लाई कर रहे हैं, यदि आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो डाउनवर्ड में आपका क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है. ठीक है. और जो प्रेशर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड साइड में,
तो अपवर्ड साइड में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो टॉप पे आपका टेंशन आ रहा है, राइट। और यदि हम एम, जब फाइनल मोमेंट की बात करें, एम इक्वल टू एम एस माइनस एम आई, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है इसका मतलब, पॉजिटिव टेंशन एट द बॉटम। Now we see the application to the beam. So here you can see analysis of the beam. Here we use this equation, mi that is equal to p by a plus my I by multiply by x. यहाँ पे हमने mx क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे mx क्या है, आपकी जो ex है एसेंट्रिसिटी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है ओनली, आपकी x एक्सिस के अलोंग एसेंट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ पे mx हमारा 0 हो जा रहा है, और केवल जो है हम वाई एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिसिटी कंसिडर करते हुए हम एनालिसिस करेंगे बीम को। यहाँ पे देख सकते हो, ड्रॉ एनालोगस कॉलम विच हैज विड्थ 1/r, एरिया ऑफ एनालोगस कॉलम निकाल सकते हैं, आई वाई बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनालोगस कॉलम है, पी क्या एरिया ऑफ एमएस डायग्राम है, ए वाई क्या एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एनालोगस कॉलम, एम वाई क्या है, दैट इज इक्वल टू पी ई वाई। फाइनल फाइंड फाइनल मोमेंट दैट इज फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, यूजिंग द कॉलम एनालॉजी मेथड फाइंड द एंड मोमेंट डेवलप इन ए फिक्स बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ थ्रू आउट स्पैन। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना, फाइनल एंड मोमेंट निकालना है इस बीम का। तो टेकिंग द सिंपलिस्टिकेटेड बीम एज ए बेस डिटरमिनेट बीम, फ्री मोमेंट डायग्राम ले लिया हमने, यहाँ पे एमएस डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो यदि इस लोड कंडीशन में हम एमएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, WL²/8 आएगा, सेंटर में मैक्सिमम रहेगा WL²/8। तो सो एनालोगस कॉलम विद MS/EI लोड एंड प्रेशर फ्रॉम फुटिंग, ये क्या हो गया, एमएस डायग्राम हो गया, MS/EI डायग्राम क्या होगा, डिवाइड बाई EI करेंगे जब भी होगा, ठीक है। तो उसको हम कॉलम एनालॉजी मेथड में क्या कंसीडर करेंगे, लोड, और जो प्रेशर फ्रॉम फुटिंग है वो एम बाई EI डायग्राम को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो हियर P इक्वल टू लोड ऑन एनालॉगस कॉलम, जो ये है, जो लोड है एनालॉगस कॉलम का, ये किसके इक्वल रहेगा, जो मैंने कंडीशन बताई थी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ MS/EI डायग्राम्स। तो यहाँ पे एरिया ऑफ MS/EI डायग्राम क्या रहेगा, ये आपका क्या है, पैराबोलिक है, तो 2/3 इंटू लेंथ एंड दिस हाइट WL²/8, so that is equal to WL क्यूब डिवाइड बाय 12 EI। टोटल जो लोड है दैट इज बी एक्ट, दैट इज WL क्यूब बाय 12 EI। ये लोड एक्ट कर रहा है इस विड्थ पे, ये हमारा कॉलम है, इसको हमने 1/EI यूनिट विड्थ मान के कंसिडर किया है, ठीक है। और दिस वन इज द MI by EI diagrams. So centroid of load and centroid of column are at the mid span of the beam. दोनों का जो सेंट्रोइड है क्या आपका मिड स्पैन ऑफ द बीम है, राइट। तो हेंस ई वाई वाई एसेंट्रिसिटी विद द सेंट्रोइड एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ई वाई वाई है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रोइड हमारा जो लोड है, जो लोड एक्ट कर रहा है वो सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा, और जो सेंट्रोइड आपका इसकी मिड पे है, तो यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये इक्वेशन यूज करी थी दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एम आई क्या कैसे निकलेगा, सो एम आई इक्वल टू पी दैट इज इक्वल टू पी बाई ए। अब पी हमने क्या कंसिडर किया था, पी आपका क्या था यहाँ पे, दिस वन निकाल लिया, ठीक है, लोड है, सो दैट इज इक्वल टू WL³ बाई 12 EI मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया क्या होगा अपना, जो यूनिट विड्थ इनटू लेंथ, यूनिट विड्थ क्या है ये, और लेंथ क्या होगी ये, दिस वन L, तो EI बाय L, ये आपका हो गया एरिया WL² बाय 12। तो ये आपका आ गया MI।
नाउ वी फाइंड द फाइनल मोमेंट एट ए। अब एंड ए पे हमें फाइनल मोमेंट निकालना है, एट एंड ए पे। एंड ए ये हो गया, एंड बी ये हो गया। तो एंड ए पे यदि हम एम एस देखें तो जीरो है, एंड बी पे भी एम एस जीरो, बट एम आई है। ये सॉरी, ये आपका एम आई है, बार बार मेरे इस पे ध्यान चला जा रहा है, ये एम आई है, इस पे एम आई कर लीजिए। तो एम आई तो है, एम आई हम निकाल चुके हैं इजिली। एम आई क्या है हमारा, डब्ल्यू एल स्क्र बाई 12, राइट। तो फाइनल मोमेंट एट ए पे क्या रहेगा, एम एस माइनस एम आई दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एम एस क्या, जीरो माइनस डब्ल्यू एल स्क्र बाई 12। ये जो वैल्यू आई माइनस डब्ल्यू एल स्क्र बाई 12 इज दैट टेंशन एट, टेंशन एट टॉप, राइट। नेगेटिव आई है तो टेंशन एट टॉप है, यदि ये पॉजिटिव आती तो टेंशन एट बॉटम होता, राइट। यदि हम बी पे देखें फाइनल मोमेंट, तो जीरो माइनस डब्ल्यू एल स्क्र बाई 12, राइट। तो यहाँ पे जो टेंशन एट टॉप, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है तो टेंशन एट टॉप ही आएगी। तो ये फाइनल एंड मोमेंट हमने एनालिसिस किया, इजी था स्टूडेंट। इसमें केवल हमें क्या निकालना है, एम एस निकालना है और एम आई निकालना है। एम एस तो आपके यहाँ पे इजिली जीरो है, यूडीएल केस है तो जीरो ही है, ठीक है। सिंपली पुट ऑलवेज जीरो रहेगा, बट बाय द यूजिंग द एम एस डायग्राम वी फाइंड द पी, पी बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ एम एस डायग्राम। बाय यूजिंग द पी वी फाइंड द एम आई, राइट। यहाँ पे एम वाई वाला जो आपका फैक्टर्स है वो यूज करना है नहीं करना, वो डिपेंड करेगा जो लोड एक्ट कर रहा है आपका, वो सेंट्रोड पे एक्ट कर रहा है या एसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है, राइट। यदि एसेंट्रिसिटी विद वाई एक्सिस है तो एम वाई यूज करेंगे, यदि एसेंट्रिसिटी विद एक्स एक्सिस है तो हम क्या यूज करेंगे, एम एक्स यूज करेंगे, राइट। वो किसके इक्वल होगा हमारा, सब कुछ मिशन करके एम आई निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं आपको, और क्वेश्चन देखेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।